Assalamualaikum. I'm Nareen Askar, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about top 30 most important biology MCQs for all types of competitive exams like SST biology, PPSC biology, FPSC biology means any other subject specialist टेस्ट जिसमें रेलिवेंट टू बायोलॉजी जिसमें एम कैट है नीट है एज वेल एज any other educators test or admission test relevant to MPhil or PhD. So these are some of the most important biology MCQs. So first one is spermology is the study of. So basically it is the study of seed. Normally ये term students को confuse करती है और past paper में MCQs आया भी हुआ है कि spermology is not the study of sperm. It is basically a study of seed. And then the human heart is either neurogenic, myogenic, pulsating and ampullary heart. So basically humans का heart जो है वो myogenic heart है, not neurogenic. The main difference is that hearts जो है वो several types के हैं, लेकिन जो invertebrates के heart हैं that are basically stimulated by nervous system. So that's why these hearts are called neurogenic heart. while जो human का heart है basically वो receives करता है stimulus और contraction from muscles. So that's why it is called myogenic heart. As we all know about receptor effector mechanism, so basically एक जो impulse है एक response है वो start होता है from muscles से या किसी भी receptor से basically जो कि आगे at the end जो है वो effectors पे normally muscles या glands पे जाके end होता है. So basically this type of overall contraction or type of heart is myogenic heart. And then, who is known as the father of zoology? So, Aristotle. And it is also important MCQs that I have already discussed in introduction of biology lecture. And then animal without red blood cells. So वो animal जिसके अंदर जो है वो red blood cells नहीं होते, so that is earthworm. Frog has snake और peacock. So these are basically vertebrates. Normally जो invertebrates हैं like arthropoda, अगर हम बात करें फाइलम की तो उसके अंदर भी जिस तरह कॉकरोचेस हैं उनका जो है वो वाइट कलर का जस्ट एक लिक्विड होता है इंस्टेड ऑफ रेड ब्लड और रेड ब्लड सेल्स. सो बेसिकली these जो animals हैं वो are associated with without red blood cells. And then the next one is the energy released by 1 gram of glucose. So its right option is 4 kilocalorie. As well as protein का MCQs भी आ सकता है. It is also 4 kilocalorie. While in case of fat, this is 9 kilocalorie. And this is a common MCQs relevant to bioenergetics. And then chambered heart occurs in. ये सारे के सारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें से किसमें चैम्बर्ड हार्ट है. सो बेसिकली वो है कॉकरोच इंस्टेड ऑफ लीच अर्थवर्म और स्नेल. और जो कॉकरोच हैं इनके अंदर 13 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है. लाइक दिस इज आल्सो नेक्स्ट एमसीक्यूज लाइक टोटल चैम्बर्ड इन कॉकरोच हार्ट सो दैट इज 13 यानी 13 ओवरऑल ये चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में. इसी तरीके से अर्थवर्म से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आता है क्योंकि उसमें पार्टीशन है उसके हर जो स्पेसिफिक पार्ट है उसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं with respect to digestive, reproductive, and so on. And then the next one is the corner of cells of colon-chyma tissue in plant are thickened due to deposition of. So basically जो colon-chyma tissue है plant का उसकी thickening किसकी वजह से होती है. So that is basically cellulose and pectin. And then biopesticides, some specific species of which of the below kinds of organism are employed as biopesticide. यानी ये ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया है फंजाई है फ्लावरिंग प्लांट्स है इनमें से कौन सी ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोपेस्टिसाइड के तौर पे यूज होते हैं. सो इट्स राइट ऑप्शन इज वन ओनली बिकॉज ओनली बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली यूज होते हैं एज बायोपेस्टिसाइड. यानी अगर हम पेस्टिसाइड का काम लिविंग ऑर्गेनिज्म से करें टू किल द पेस्ट बेसिकली, सो दिस इज कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड्स. एंड देन डैश फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम. सो कोएंजाइम का रॉ मटेरियल किससे बनता है वो है विटामिन्स लाइक एनएडी है एफएडी है. दीज आर मोस्ट कॉमन वन कोएंजाइम्स. सिमिलरली कोएंजाइम के साथ एसोसिएटेड टर्म है एपेंजाइम. सो इसी तरह होलोएंजाइम. सो इनसे भी एमसीक्यूज आते हैं. And then the phenomena of summer sleep by animals.
सो समर स्लीप का जो फिनोमिना है वो कहलाता है एस्टिवेशन, और ये किन ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, लाइक स्नेल में है, क्योंकि इसमें जो है वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से लिटिल बिट डिफरेंस है बिटवीन हाइबरनेशन that is associated with winter sleep. And then what is the resolution power of a compound microscope? So compound microscope की resolution power क्या है, वो है 2 micrometer. And then the next one, which of the following is the first layer of cell wall? So cell wall की जो first layer बनती है that is primary wall, and then secondary wall, और इन दोनों के between में जो substance है that is middle lamina. So इन तीनों से MCQs बन सकता है. And then dash has cellulose as the major component. So ये ही जो हमने सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ी है प्लांट में, इसके अंदर जो सेलुलोज जो है वो मेन पार्ट होता है, so वो होता है प्राइमरी वॉल का. And then from the following pairs find the one which is correctly matched. So that is malaria and chloroquine. Basically जो chloroquine है some medication used to prevent and cure or treat malaria. ठीक है, यानी ये उसकी मेडिसिन है, बेसिकली ये डिजीज है. सो दिस इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर टू अदर वन. इसी तरीके से बीसीजी किस केस में यूज होती है ये आपने देख लेना, बेसिकली फॉर ट्यूबरकुलोसिस एज वेल. And then bone deformities occur due to excess intake of. So bone की जो deformities हैं, diseases हैं, अगर normally हम कहते हैं कैल्शियम की जो है वो deficiency से तो होती है, लेकिन excess किससे होती है, so that is basically associated with fluorine. फ्लोरीन की excess जो है, इसी तरीके से यूरिक एसिड का excess हो जाना जो है वो bone की deformities की main reason है. And then the phenomena of summer sleep basically is called estivation. This is another or same MCQs. And then name the blood cells in which nucleus is absent. तो blood cell की वो type जिसमें nucleus absent है that is blood platelets. While these are all remaining three are types of white blood cells, and as we all know that white blood cells are nucleated cells, while red blood cells are also nucleus containing cells but in initial stages or at immature stage, while in case of some other not mammals उनके केस में जो है वो न्यूक्लियस होता है रेड ब्लड सेल्स में, तो लाइक बर्ड्स. तो इसको जो है वो आपने अच्छे से इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है. नेक्स्ट है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दिस इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स में भी है ये. सो डेट इज टूथ इनेमल, यानी जो हमारे टूथ हैं, टीथ हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग है इनेमल की, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट. फीमर जो है और टेम्पोरल जो है, बेसिकली दीज आर द हार्डेस्ट बोन्स. सो यहाँ डिटेल में भी मेंशन है कि जो इनेमल है ये बेसिकली हार्डेस्ट मिनरलाइज सब्सटेंस है, डेट इज बेसिकली अ टिश्यू नॉट अ बोन. वाइल अगर हम बात करें हार्डेस्ट बोन की, सो डेट इज फीमर एंड टेम्पोरल बोन. सो अगर ये एमसीक्यू टिश्यू से रेलिवेंट आएगा देन इट इज टूथ इनेमल, एंड अगर ये बोन से रेलिवेंट आएगा देन ये. तो अभी यहाँ पे दो इस वजह से नहीं हो सकते थे कि दीज आर बोथ बोथ जो है ये बोन्स हैं, और जस्ट ये डिफरेंट है. अगर इधर ऑल का या बी और सी का ऑप्शन होता है या मे बी ए बी एंड सी का ऑप्शन होता है, तो देन द राइट वन ऑप्शन वो ऑल वाला होना था. इस तरीके से थोड़ा सा पेपर को जो है वो समझ के सॉल्व करना है. नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ आईज फाउंड इन अर्थवर्म. अर्थवर्म में कितनी आईज होती हैं? सो बेसिकली कोई आंख नहीं होती अर्थवर्म में, नो आई, क्योंकि अर्थवर्म डोंट हैव एनी आई बट स्टिल सेंस लाइट. एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, एज वी ऑल नो दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एब्सेंट होती है वो होती है प्रोकैरियोट्स में, जिनके अंदर न्यूक्लियर डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नॉस्टॉक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड while volvox penicillium and agaricus, this is the fungus, and this is belong to algae, so these are eukaryotic organisms. so इसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक जो है वो नॉस्टॉक है. एंड देन व्हाट इज द साइज ऑफ पॉक्स वायरस? पॉक्स वायरस का साइज जो है वो 250 नैनोमीटर है. इसी तरीके से लार्जेस्ट वायरस स्मॉलेस्ट वायरस, इसकी डिटेल जो है वो इंटरमीडिएट की लेवल की जो बुक्स हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट है, उसका साइज भी जो है उसके अंदर ये दिया हुआ है. देन है साइनोबैक्टीरिया इज रिप्रोड्यूस बाय दैट इज बाइनरी फिशन, यानी वो मैकेनिज्म जिससे साइनोबैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करता है, दैट इज बाइनरी फिशन. ये भी स्पेसिफिक है हर
जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है वो बाइनरी फिशर से ग्रो करते हैं, कुछ कॉन्जुगेशन लाइक इन केस ऑफ पैरामीशियम द मोस्ट कॉमन वन इज conjugation. And then the outer membrane that covers the brain, it is dura mater, as it is also mentioned in this diagram. तो ये ब्रेन की जो है वो मेम्ब्रेन से रेलिवेंट भी एमसीक्यूज आ जाते हैं. देन है द प्लांट डाई, है ना, इन बेसिकली, और कलर जो देती है स्किन को, हेयर्स को, जो डाई के लिए यूज होती है. सो वो उसके अंदर जो है बेसिकली कौन सी सब्सटेंस होती है, तो बेसिकली ये जो प्लांट है ना, इसके अंदर प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव कलर टू हेयर एंड नेल्स. सो इट इज द मोस्ट कॉमन कंसेप्ट है इसके पीछे के स्किन्स और हेयर्स, लाइक इसमें केराटिन प्रोटीन है बेसिकली. तो वो प्रोटीन को जो कलर देने के लिए वो प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स ही यूज होंगे. fibrous प्रोटीन है ना, हेयर्स इस. एंड देन टिका डिजीज इज रिलेटेड विद द क्रॉप, जो क्रॉप प्लांट से रिलेटेड है. बॉटनी लेक्चर, बॉटनी एज वेल एज लेक्चर बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज है कि ये डिजीज जो है वो क्रॉप, किस क्रॉप से बेसिकली रेलिवेंट है. सो राइट ऑप्शन इज ग्राउंड नट. वो अर्ली स्टेज पे एज वेल एज लेटर स्टेज पे जो लीव्स का डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट्स आ जाते हैं, इस डिजीज को कहते हैं थिका डिजीज. एंड देन द हार्मोन दैट हेल्प्स इन पार्थिनोकार्पी. So basically parthenocarpy is the development of fruit without fertilization. So normally जो seedless tomatoes बनते हैं, watermelon है as well as banana है, तो basically ये फिनोमिना जो है वो parthenocarpy कहलाता है. और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है जिबरलिन. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इन सब हार्मोन्स का जो है वन बाय वन फंक्शन मेंशन है. फेडरल की भी एज वेल एज जो है पीपीटी की इंटरमीडिएट लेवल की जो बायोलॉजी बुक्स हैं, तो उससे इस कंसेप्ट को इजीली क्लियर किया जा सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड. So basically, spleen is not a gland, while pituitary, thyroid and adrenal, these are the glands. और स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर बेसिकली दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, आइदर हार्मोन्स और एनी अदर प्रोटीन, डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन डक्ट. यानी ब्लड के अंदर जो है डायरेक्टली जो है वो पास ऑन करते हैं, किसी डक्ट में नहीं करते. इन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. जो डक्ट के अंदर करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो ओनली पेंक्रियाज वो ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है. वो अपना फंक्शन दोनों तरीकों से परफॉर्म करता है. जो डक्ट्स के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर वो पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन करता है, वाइल इन केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हमें पता है पैंक्रियाज से जो है वो ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है उसकी सिंथेसिस होती है. सिमिलरली हेयर स्प्लीन. सो स्प्लीन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स भी कहते हैं. यानी ये ब्लड सेल्स की सिंथेसिस एज वेल एज जो डेड आफ्टर ब्रेकडाउन जब आते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनको स्टोर करता है. सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू सिंथेसिस एंड रीजनरेशन ऑफ ब्लड सेल्स. So these are top 30 most important biology MCQs. Hope you can understand them. So wish you good luck for your preparations. Stay connected and keep learning.